this topic, waste processing techniques. Okay, so these were the topic in model number 4, that is processing techniques, biological and chemical conversion technologies, composting and its method, vermicomposting, mechanical composting, and vessel composting, incineration, pyrolysis, gasification. So all these are the treatment processes which is required for the solid waste. Okay, so 4 hours total it is required. Okay, so let us start with this. Let us go with the introduction. वेस्ट सेपरेशन इज द प्रोसेस. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेस्ट को हम सेग्रीगेट कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट. सो हम कैसे करेंगे, सेपरेट सेपरेट करेंगे, तभी उसको आप अलग अलग उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर पाओगे. देन यू कैन सेंड टू योर देन यू कैन सेंड फॉर अगर लैंड फिलिंग के लिए करना है तो आप यू कैन सेंड फॉर लैंड फिलिंग, और अगर आपको इंसिनरेशन के लिए करना है सो यू कैन सेंड फॉर इंसिनरेशन, और if you want to be do for a composting so you can send for a composting. but उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, segregate करना पड़ेगा. अब ये जो segregation of the ये जो segregation of the solid waste है, ये कहाँ होगा? This will be done at the ट्रांसफर स्टेशन. आपके ट्रांसफर स्टेशन में इसको आप कर सकते हो, या अगर किसी को सोर्स लेवल में करना है तो वो सोर्स लेवल में भी कर सकता है. सोर्स लेवल इन द सेंस ऑफ कि जैसे अगर किसी का ये है अपना घर है तो घर में तो ये नहीं होगा. somehow you can basic segregate your waste, लेकिन एक मैग्नेटिक अगर वेस्ट है तो उसको आप अलग नहीं कर सकते हो. अगर ऑप्टिकल वेस्ट आपका है तो उसको आप अलग नहीं कर सकते हो. तो अगेन मशीनरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो इट विल बी कॉज अ हाई कॉस्ट. बट अगर आपकी कम्युनिटी बड़ी है तो वो कम्युनिटी अपने प्रेमाइसेस में थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अब ये ट्रांसफर स्टेशन जैसा कुछ बना सकता है. नवीन, so and society can give it in his premises and they can use, or basically it is used in industry जहाँ पे आपका टन्स में आपका वेस्ट निकल रहा है तो आप वहाँ पे अगर सेग्रीगेशन कर सकते हो. बेस्ड ऑन द वेस्ट आपका क्या है उसके बेसिस में आप उसका सेग्रीगेशन कर सकते हो. सेग्रीगेशन क्यों कर रहे हैं कि मटेरियल रिकवरी वहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है कि फिजिकल ट्रीटमेंट देना है कि केमिकल ट्रीटमेंट देना है. इसके लिए भी हमें सेग्रीगेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So waste separation is a process by which waste is separated into different elements. Separation is used to permit more efficient processing of a waste component. ठीक है, and can be separated in material recovery facilities. And second is a mechanical biological treatment system. आप रिकवरी के हिसाब से भी उसको आप सेपरेट कर सकते हो, या आप उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के देने के हिसाब से भी आप कर सकते हो. नाउ व्हेन वी से सेपरेशन प्रोसेस, so there are different methods which are involved in this. So we'll see one by one. Today we'll see all the 7 points only. हमें यही पॉइंट्स आप देखना है. उसके बाद में जो भी आपका कंपोस्टिंग है, इंसिनरेशन है, लैंडफिल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. बट आज हम लोग बेसिक यही पॉइंट्स को हम चेक करेंगे. ओके, द फर्स्ट वन इज पिकिंग. ठीक है, सेकंड इज स्क्रीनिंग, थर्ड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ इज एयर क्लासिफिकेशन, the next is optical separation, next is AD current method, and next is flotation. So these are the different methods which are come under the separation process. So let us see this first method, picking. If you see this, this is your conveyor belt. ये आपका एक conveyor belt है, whereas your waste is putting on this belt, and you can see few people are standing on there. This is your crew member which is standing just beside this conveyor belt, and what they are doing, they are manually picking up. Okay, manually they are picking. What they are doing, so this one person is separating the plastic, the another person is separating the organic waste, the third person is separating the metallic waste, and fourth one is doing something like a optical glass like that. Okay, so what they are doing, individual person is separating separate elements. Okay, the task is given to individual one, and then what they are doing, they are putting everything to a separate bin. Okay, so in this way this separation is happening in the transfer station. Okay, or you can say this is also, you can say this can be done in your disposal side. Wherever your disposal side is there also it can be done. Okay, so it is a most positive way to achieve a recovery and reuse of the material. Okay, so manual separation of solid waste can be accomplished at a source. I repeat, manual separation of the solid waste can be accomplished at a source where solid waste are generated. जहाँ आपका solid waste generate हो रहा है वहीं पे आप इसको reduce करो.
सेकेंड थिंग यू कैन डू एट ए ट्रांसफर सेशन, आप ट्रांसफर सेशन में भी इसको कर सकते हो। या थर्ड साइड, थर्ड क्या रहेगा आपका, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग स्टेशन। आपके पूरी सिटी का एक डिस्पोजल करने के पहले आपका एक सिटी का एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग स्टेशन होगा। यू कैन से सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग स्टेशन कम्स योर ट्रांसफर सेशन, और फिर वहां से सेकेंडरी कलेक्शन करके आप अपना डिस्पोजल साइड पे आप सेंड करोगे। सो अगेन इट विल रिड्यूस योर कॉस्ट एज वेल एज इट विल गिव ए रेवेन्यू टू यू। Okay, so that's why the centralized processing station is also good. So next is the disposal side. आपका ये जो सिस्टम है पिकिंग सिस्टम, ये आपके डिस्पोजल साइड में भी हो सकता है। When we say solid waste generation, तो आपने वो आपको भी लगेगा यार ये कैसे होगा, how it is possible. So कहीं भी आपने ऐसा ध्यान दिया होगा तो जो आपके रैक पिकर्स होते हैं, रैक पिकर्स, दोज आर द पिकर्स। वो क्या करते हैं कि हमारे उस वेस्ट में जो भी हमारा वेस्ट कलेक्ट हुआ है हमारे सोसाइटी का, हमारे कॉलोनी का, ठीक है, हमारी कम्युनिटी का, तो क्या करते हैं वो रैक पिकर्स आते हैं, वो उस कचरे से ढूंढना शुरू करते हैं। कोई ऐसा रहता है जो सिर्फ प्लास्टिक चुनने का काम करेगा, या कोई ऐसा रहता है जो आपका मेटेलिक कंटेंट को पिक करेगा। तो उनकी टीम रहती है, तो 3 या 4 लोगों के बीच में 3 या 4 लोगों की टीम रहती है रैक पिकर्स का, वो आते हैं और ऐसे अपने वेस्ट में से कचरा उठा के देते हैं। या आपने ये भी देखा होगा समटाइम्स इंडिविजुअल रैक पिकर्स गो एंड ही कैरीज डिफरेंट डिफरेंट बैग्स एंड देयर ही पुट्स ऑल द वेस्ट। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि एक रैक पिकर जो स्पेसिफिकली मैं अपना फेरस मटेरियल यानी आयरन वगैरह को लेने का या कॉपर चुनने का काम करता है, बिकॉज क्योंकि उसका भी आपका रीसेल वैल्यू काफी अच्छा मिल जाता है। दैट्स व्हाई दे आर गोइंग विद कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ओके, सो जनरली व्हाट दे डू, दे यूज अ थ्रेड, आपका एक रस्सी यूज करते हैं, थ्रेड यूज कर, रोप, दे विल यूज अ रोप and then a magnetic is attached to that rope. Okay, or a magnetic is attached to a wooden also, and then what they do कि वो उसे क्या करते हैं उस कचरे में अंदर में इंसर्ट कर देते हैं और फिर उससे थोड़ा सा खंगाल लेते हैं डिस्टर्ब करके। तो जो भी आपका मटेरियल मेटेलिक आपका मटेरियल्स होगा वो सारा का सारा उनके उस मैग्नेट में अटैच होके आ जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस how they are contributing, like because are contributing for the society. Okay, so this is the manual sorting rate at efficiency. Okay, manual sorting rate and efficiency. So material हमने यहाँ मेंशन किया है, जैसे कि मटेरियल क्या है आपका, न्यूज़पेपर, कॉर्पोरेटेड, ग्लास कंटेनर। लेकिन इसमें भी देखो, इसमें ग्लास कंटेनर में 2 कैटेगरी दिया हुआ है, वन इज अ मिक्स कलर एंड सेकंड वन इज अ ग्लास कंटेनर बाई कलर ओनली। नेक्स्ट इज अ प्लास्टिक कंटेनर्स, पीईटी, एचडीपी, ये प्लास्टिक के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके बेसिस में। लास्ट इज एल्यूमिनियम कैंस। बट इसका भी देखो उसका सॉर्टिंग रेट दिया हुआ है, हाउ मच केजी पर आवर पर सॉर्टर, इतना आप उसको पैसा देते हो, सॉर्टिंग रेट। ओके, सॉरी, इतना इतना केजी वो एक एक घंटे में निकालता है। एक सॉर्टर, इसको हम बोलेंगे सॉर्टर, एक रूम मेंबर आपका एक घंटे में इतना इतना केजी वो वहां से पिक कर लेता है। सो दैट इज अ रेट। ओके, secondly, if you see, this is the recovery efficiency. So you can see for newspaper it is the 60 to 95% recovery, or corrugated it is the 60 to 95 same, glass container it is the 70 to 95, glass container in which is a bicolor, that is also given 80 to 95, same is with the plastic container, same is with the aluminum container. Okay, so this is the sorting rate. अब इतने इतने एक आवर में ये एक आदमी 700 से लेके 4500 केजी तक का वेस्ट को सॉर्ट आउट कर लेता है। ये उसकी एफिशिएंसी हो, सॉर्टिंग रेट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग। Screening are used for achieving efficient separation of particles through a dependence on a difference between a particle size and respect to any 2 dimensions. अब यहाँ पर आपका क्या है, ये स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग कैसा है, ये आपका रोटेटरी स्क्रीनिंग है। ओके, ये आपका रोटेटरी स्क्रीनिंग, आपका जो वेस्ट होगा इस स्क्रीन के अंदर में होगा। जैसे जैसे रोटेट करेगा वो मेश से जो भी पार्टिकल साइज बड़ा छोटा होगा, फाइन होगा, उस मेश के बाहर में आ जाएगा। और जो साइज बड़ा रहेगा तो वो उसके अंदर में ही रह जाएगा। ओके, सो स्क्रीनिंग इज डूइंग लाइक दैट। जैसे आपका छन्नी काम करता है ना, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो स्क्रीनिंग की भी हम जब बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप की स्क्रीनिंग है, वन इज नोन एज अ ट्रॉमल स्क्रीनिंग, another one is a disk screening.
सो दिस इज अ काइंड ऑफ योर ट्रॉमल स्कैनिंग, जिसमें आपका ये मेशेस, देखो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, मेश टाइप दिखेगा। यू कैन सी इट इज लाइक अ मेश। ठीक है, जैसे जैसे ये रोटेट होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका वेस आप सेंड करोगे तो वो कोई भी क्या है, जब भी हम स्क्रीन करते हैं तो उसको शेकिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो जो ये आपका स्क्रीनिंग है ट्रॉमल में, क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक ऐसे रोटेट होता रहेगा। ओके, the trommel screen is a perforated rotating drum. See, this is a rotating drum. Set an angle to allow for a gravity feed and discharge. और ऐसा आप देखोगे इसको, तो इसको एक स्लोप दिया हुआ है। ये ऐसा फ्लैट नहीं है, दिस इज इन द स्लोप। क्यों ऐसा स्लोप दिया हुआ है? एक एंगल में स्लोप दिया हुआ है, ताकि जैसे हम रोटेट करेंगे तो आपका जो मटेरियल है बाई ग्रेविटी वो धीरे धीरे आगे आपका बढ़ता रहेगा। सो दैट इज वाई। So efficient for processing mixed waste and other mixture where large flat particles, that is paper, and aggregate type particles, that is a crushed glass, must be separated. इसमें से दो टाइप के जो आपके वेस्ट है वो श्योर शॉर्ट बहुत अच्छे तरीके से आपका अच्छी एफिशिएंसी के साथ में उसको स्क्रीन हो जाता है। ओके, so next is a disk screen. Okay, disk screen have been employed in many waste processing facilities. बहुत जगह ये बहुत ज्यादा तरीके से इसको हम यूज करते हैं। मैं बताता हूँ। आई डिडंट गेट एनी फोटो बट आई हैव अ वीडियो आई विल शेयर विद यू। This screen consists of a number of evenly spaced shaft in a horizontal plane fitted with a disk such that there are interference pattern from opening through which the undersigned material will flow. Okay, so let me show you this. मेरे पास उसका फोटो तो नहीं मिला, बट आई हैव this video. You can see this video how this disc are working. So you can check on what basis it is happening, on what basis it is working. जो भी उसका वेट होगा उसके बेसिस में वो पार्टिकल्स आपके कलेक्ट होते जाएंगे, और उसके जो साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सिमिलरली वन मोर इज देयर। Now you can check this. Okay, this is the fine particles which are coming over here, which are collecting over here. You can see this is a feeder. With the help of this crane, it is feeding to a hopper section. You can check this one. You can check this one. ये आपका फीडर है जो आपके वेस्ट को इस हॉपर सेक्शन में
डाल रहा है, और उसके बाद ये डिस्क स्पिनिंग के कारण वो आपका सारा वेस्ट नीचे की तरफ में कलेक्ट हो जा रहा है, लाइक दिस। हियर वी हैव सीन दैट कि यहाँ पे जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा था, डिमोलिशन वेस्ट दे हैव यूजिंग इट, ओके, बट वी कैन गो फॉर अ सॉलिड वेस्ट आल्सो, दैट इज नॉट एन इशू। वन मोर पॉइंट, ऑल ऑफ द शाफ्ट रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सारे शाफ्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, और यही रीजन है जो वेस्ट को वो आगे की तरफ में भेजता रहता है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज अ मैग्नेटिक। नाउ नेक्स्ट वन इज अ मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। आपका मैग्नेटिक, आपके जो अगर फेरस मटेरियल है, उस फेरस मटेरियल को अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, आपका अगर आयरन एलिमेंट्स है, अगर उसको वहां से रिमूव करना है, तो यू कैन यूज अ मैग्नेटिक सेपरेटर्स, ओके। मैग्नेटिक सेपरेशन इज अ, it is a process to use to separate the magnetic materials like a ferrous from a mixture of a different type of material। आपके गार्बेज में अगर फेरस कंटेंट्स अगर अवेलेबल होंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक सेपरेटर आप उसको अलग कर सकते हो, ओके। मिक्स वे और ओके, जो भी आपका मिक्सचर होगा, आपका मिक्सचर में ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक होगा, फेरस होगा, नॉन फेरस होगा, जितने भी टाइप के होंगे उसमें से आप अपने मैग्नेटिक, आपका जो सेपरेट सेपरेट मैग्नेटिक वाला मटेरियल आप उसको वहां से रिमूव कर सकते हो। द प्रोसेस इज टेक्निकली सिंपल एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट, क्योंकि यहाँ क्या है, सिर्फ सिंपली एक मैग्नेटिक को इसमें यूज किया है। अब अगर आप ये ध्यान से देखोगे, सो दिस इज अ फीडर, ये आपका फीड आपके बेस को यहाँ पे पोर करते चल रहा है, और ये आपका क्या रहेगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन पार्टिकल्स में रहेंगे, ये आपके शेडेड पार्टिकल्स रहेंगे, ऐसा एक बिगर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं रहेगा, ऑल दोज आर वेरी शेडेड पार्टिकल्स, ओके। तो अगर आप देखोगे तो दीज आर द मैग्नेटिक रोलर्स, these are the magnetic rollers। अब ये मैग्नेटिक रोलर का क्या काम है, आपका जो नॉन फेरस मटेरियल है, इस बेल्ट, ये कन्वेयर बेल्ट है आपका, इस कन्वेयर बेल्ट में आपका सॉलिड वेस्ट है, आपका जो नॉन फेरस मटेरियल है, यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, वो ये कंटेनर में आ जाएगा, बट जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है वो इस बेल्ट को अटैच रहेगा। एंड आफ्टर दिस, ये जैसे ही बेल्ट ये रोटेट करेगा यहाँ से, तो आपका जितना भी फेरस मटेरियल है वो सारा का सारा डाउनफॉल हो जाएगा ये दूसरे वाले कंटेनर में, okay, this is your moving belt, so in this way this magnetic separation is work, okay। One more point is that this is that let me show you one more thing। इसमें एक और वीडियो है मैग्नेटिक सेपरेटर को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए। सो दिस इज लाइक दिस, आपका जो ये ब्लैंक है वो एम्प्टी है, ठीक है, बट आपका मैग्नेटिक सेपरेटर यही ऐसे ही वर्क करता है, ओके। यहाँ पे सब आपका वेस्ट रहेगा, और ये आपका मैग्नेटिक बेल्ट रहेगा, और जो भी वेस्ट आपका ये होना है, कलेक्ट होना है, वो नीचे की तरफ में हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल वन। नाउ नेक्स्ट इज एयर क्लासिफिकेशन, process of separating category of a material by way of a difference in their respective aerodynamic characteristics। अब ये जो हम वेस्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे या उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, दैट विल बी बेस्ड ऑन दी एयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें क्या बोलेंगे, एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल इज प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ द साइज, ज्योमेट्री एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। यस ऑफ कोर्स, अगर कोई भी पार्टिकल आपका हवा के कारण इससे ये पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा रहा है, तो जितना लाइट होगा वो उतना वो आगे फास्ट ट्रेवल करेगा, यही उसका फंडामेंटल, यही उसका प्रिंसिपल है। लेकिन लाइट किस बेसिस में हम बोल रहे हैं, लाइट कैसे रहेगा, अगर उसका साइज कम रहेगा, उसका ज्योमेट्री आपका स्पेरिकल शेप में है, तो मतलब उसका डेंसिटी आपका कम रहना चाहिए, तो आपके वो एयर के बहाव के साथ में वो आगे आपका पार्टिकल जा सकता है। नाउ इफ यू सी दिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर क्लासिफिकेशन, एयर क्लासिफायर्स, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल एयर क्लासिफायर है, आपका दूसरा वर्टिकल एयर क्लासिफायर है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एयर क्लासिफायर की बात करता हूँ, सो यू कैन जस्ट focus on this diagram, okay, you can focus on this diagram, जहाँ पे
अब देखो ये आपका शेडेड वेस्ट, शेडेड मिक्स्ड वेस्ट इज एंटरिंग, ओके, और साथ में आपका एयर भी इंटर करेगा। सेम वे आपका एक जो कंपोनेंट ऑफ एयर है वो यहाँ से भी आएगा, ओके। तो ये दो आपका एयर चेम्बर हो गए, मतलब एयर एंटरिंग चेम्बर हो गए, और एक आपका जो पोर्ट है उसमें से एक आपका शेडेड मिक्सर है, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपका जो पार्टिकल है, जो भी आपका हवा के साथ में जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, या यूं बोलिए कि आपने आपका जो भी शेडेड मटेरियल आपने यहाँ के कर दिया, फोर कर दिया, और उसके बाद में क्या दिया आपने, एक कॉम्प्रेसिव फोर्स दिया, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी आपने क्या दिया, कॉम्प्रेसिव फोर्स दिया। ड्यू टू दिस प्रेशर दिस सॉलिड वेस्ट विल मूव फर्दर। लेकिन अब क्या होगा, जो भी आपका हैवी एलिमेंट होगा या जो भी आपका हैवी पार्टिकल्स होंगे वो ड्यू टू दिस ग्रेविटी वो यहीं कहीं सेटल हो जाएगा, बराबर है। और आपका जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, इसके साथ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, इसके साथ में आगे बढ़ जाएंगे, या ये कि यहाँ पे आके सेटल हो जाएंगे। फिर यहाँ से आप उसे ओपन करके उससे आप रिमूव कर सकते हो, सब पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। बट अगेन बात वही होगी कि बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, बेस्ड ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे आपका पार्टिकल्स को आप अलग अलग कर रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैवी फ्रैक्शन आपका कलेक्ट हुआ और यहाँ पे आपका लाइट फ्रैक्शन कलेक्ट हुआ, और जो आपका एयर है तो उसको जहाँ से भी ओपनिंग पोर्ट मिलेगा वो वहां से बाहर निकल जाएगा। सो ये आपका बाहर एयर हो गया, ओके। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एयर क्लासिफायर। नाउ दिस इज योर वर्टिकल एयर क्लासिफायर। तो यहाँ पे देखिए आप फिर से, आप जो एयर आपका देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेडर प्रोवाइड किया गया है, ये माउथ है उसका, ओपनिंग माउथ है, ठीक है, हॉपर सेक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने शेडर प्रोवाइड कर दिया, और साथ ही साथ आपका जो फीडिंग है आप उसको यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि ये जो आपका एयर पार्टिकल है, आप सॉरी आपका जो कॉम्प्रेसर है, अब यहाँ से ब्लो कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ पे नीचे ड्रॉप होता जाएगा, बट ड्यू टू दिस ब्लोइंग ऑफ एयर, जो भी आपका लाइटर पार्टिकल है क्या होगा, लाइटर पार्टिकल, हल्के फुल्के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके अपसाइड डायरेक्शन में निकल जाएंगे, ठीक है, ऊपर साइड से निकल जाएंगे। बट जो हैवी पार्टिकल्स जो एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद भी उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ऐसे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। सो दैट विल बी नोन एज अ हैवी फ्रैक्शन मटेरियल्स। यहाँ पे हो गया लाइट फ्रैक्शन मटेरियल, यहाँ पे हो गया आपका हैवी फ्रैक्शन नीचे रह गया, और लाइट फ्रैक्शन एयर ब्लो के साथ में वो ऊपर की तरफ में चले गया, ओके। सो लाइक दिस एयर क्लासिफायर्स आर वर्किंग। Now, this is a typical some range which is required for the this topic, this air classifier used for recovery. Okay, so typical operating and performance characteristics of an air classifier used for the recovery. So if we talk about a paper and a plastic in a heavy fraction, so typical range will be 5 to 30%। अब ये जो रेंज आपको दे रहा है दिस इज इन परसेंटेज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेपर एंड प्लास्टिक इन हैवी फ्रैक्शन, सो इट इज 5 to 30%। अब वी टॉक अबाउट लाइट फ्रैक्शन कंपोजिशन, तो अगर हम लाइट फ्रैक्शन कंपोजिशन की बात करते हैं, अगर वो फ्रेश मटेरियल होगा, ठीक है, तो उसका कंपोजिशन कितना होना चाहिए, 0.1 to 1%। इफ इट इज अ नॉन फेरस मटेरियल सो इट विल बी 0.2 to 1%। If it is fine, so 15 to 30%, paper and plastic 55 to 80%, ash 10 to 35%। देखो सारे का सारा वो किस रेफरेंस में बात कर रहा है, सारा का सारा आपका बात कर रहा है लाइट फ्रैक्शन कंपोजिशन के बारे में, ओके। नाउ परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट रिटेन इन अ लाइट फ्रैक्शन, सो फेरस ये क्या बोल रहा है, रिटेन्ड, आई रिपीट दिस इज रिटेन इन अ लाइट फ्रैक्शन। और फेरस मटेरियल की हम बात करते हैं, सो इट विल बी 2 to 20%। सॉरी हाँ सॉरी, फेरस मटेरियल के लिए है 45 to 65%, नॉन फेरस मटेरियल के लिए रहेगा आपका 80 to 99%, फॉर फाइन्स इट इज 85 to 99%, पेपर एंड प्लास्टिक इट इज 45 to 85%, ओके। If you talk about a net specific energy in kilowatt hour per mg, so this will be 1 to 11, okay। Then a column holding, so 5 to 40। चलो ठीक है, आप अगर इसको इग्नोर भी करोगे, सो ये जो चीजें हैं इन परसेंटेज आपको थोड़ा सा तो भी अंदाज में होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द एडी करंट सेपरेटर्स। नाउ वेयर दिस एडी करंट विल यूज, आपका ये एडी करंट कहाँ यूज होता है, आपने कभी ऐसा बचपन में पढ़ा होगा,
कभी आप लोगों ने स्टैटिक के बारे में भी शायद आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर में बोलूँ, तो बचपन में हमने बहुत किया है। अगर आप प्लास्टिक स्केल ले लोगे एंड इफ यू रब इन योर हेयर एंड देन सडनली इफ यू ट्राई टू पिक अ पेपर विद दैट, यू कैन डू दिस, सो दिस इज अ स्टैटिक करंट, और वही आपका एडी करंट सेपरेटर करके यूज करेंगे हम लोग। इट इज यूज अ पावर मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट अ नॉन फेरस metals from waste. Okay, eddy current separate are not designed to sort of ferrous material which become hot inside the eddy current field. It consists of a short belt conveyor and a high speed magnetic rotator. जैसे आपका मैग्नेटिक आपका सेपरेटर था, वैसे ही उसका अरेंजमेंट है, बट ये मैग्नेटिक हाई स्पीड रोटेटर जो है वो आपके इसको स्पीड देने के लिए है, मतलब आपके रोलर्स को स्पीड देने के लिए यहाँ पे उसको यूज किया है। ऐसा नहीं कि मैग्नेट के कारण कुछ ये हो रहा है, ऐसा यहाँ पे हम कहना नहीं है। तो यहाँ पे आप दो चीजें आप कलेक्ट कर सकते हो। वन इज योर नॉन फेरस मटेरियल, अनदर इज योर नॉन मेटेलिक मटेरियल। हम यहाँ पे मैग्नेट आयरन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके की चीजें, हियर यू कैन कलेक्ट टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, दैट इज नॉन फेरस। नॉन फेरस यानी आपका आयरन, सॉरी आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, अगर ऐसा कुछ रहेगा सो यू कैन कलेक्ट ओवर हियर। प्लास्टिक भी अगर आ जाता है इसमें। एंड अगर आप नॉन मेटेलिक मटेरियल की बात करोगे, सो यूर ग्लास may come, your plastic may come, so all this will come over here. Okay, I have a video for this also. Just go through this. If you see this arrangement, this is catching your materials. आपका जो ये यूनिट है उसके कारण अभी क्या है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक रोटर, ये ड्रम्स है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रही है। ओके, यहाँ पे आपका एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण आपके जो पार्टिकल्स है वो इस सरफेस के साथ में अटैच हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ओके, सो लाइक दिस एडी करंट वर्क्स। ओके, यहाँ पे एक सेपरेटर होता है जो ये मैग्नेटिक रोटेशंस के कारण यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस कर देता है, और वो सारे पार्टिकल्स को मतलब अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ में। ओके, सेम वे ऑप्टिकल आपका जो सॉर्टर है वो भी इसमें उसी तरह से कुछ काम करता है। ऑप्टिकल की हम जब बात करते हैं तो इट विल बी लाइक फॉर अ प्लास्टिक, इट विल बी फॉर अ ग्लास, इट विल बी फॉर योर रेजिन्स। Okay, so optical sorting machine are the incorporation of a optical sensor along with the mechanical separators. Okay, आप इसको मैकेनिकल सेपरेटर्स के साथ में भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। स्मॉल पावरफुल एयर जेट्स ब्लो टारगेटेड मटेरियल ऑफ अ कन्वेयर बेल्ट। आई रिपीट, स्मॉल पावरफुल एयर जेट्स, small powerful air jets blow targeted material of a conveyor belt. Optical sorter distinguish color differences between on a visible light, but also distinguish different materials like a plastic, resin and glasses. आपके
प्लास्टिक को, ग्लासेस को, अगर रेजिन्स को अगर आपको सेपरेट आउट करना है, सो यू कैन यूज दीज मेथड्स। ओके, आप ऑप्टिकल को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। ओके, सो ये आपका सेपरेशन हमने देखा, मतलब नॉर्मली ये है फिजिकल सेपरेशन हम किस तरह से करेंगे, हम उसके बारे में बात कर रहे थे आज। ओके, if anybody having any doubt, you can stay here. Okay, if you don't have any doubt, you can punch your number and you can go.